Okay, so I welcome you, all of you, to this new course called Science of Happiness. And today we will do the basic introduction of the course. Basically, the typically what is the course content and what is the methodology and the other evaluation strategies for this particular course. So, uh, and in this course, I will be using this bilingual method. I know I can speak in English and Hindi. So we'll be using both depending on the. Okay, so why this course is named as a science or science of happiness? So I have just in this slide, basically we are just showing what do we mean by science, or I have just written studying happiness as a science. So basically the basic idea is that we are going to use scientific approach or scientific method to study happiness or uh, scientific approach to happiness. So, what do we mean by science typically? So, if you just see, so I have just written the definition of science that is typically there in few of the dictionaries. So, like Merriam-Webster dictionary says, knowledge or a system of knowledge covering general truths or operation of general laws, especially obtained and tested through scientific method. So basically, if you just see the science, the word science that we are using is basically as a body of knowledge, also as well as a method or a methodology. So there is a scientific method, or you can say the knowledge obtained by scientific method. And what is the scientific method? There is a certain observation and hypothesis, and then we to test the hypothesis we are doing the experiment or some observation and validating and concluding the inference. So basically the idea is that we have set of observation that is there, and based on that observation we are making our conclusions, and these are verifiable conclusions, and it may be universal, because whatever we are testing, if it is observable to only one person or few people, or maybe at certain point of time, but it is not observed again, then it may not be scientific fact. So it must be kind of universal. Okay, so another or the similar, the Cambridge Dictionary and other also say the similar thing. And this science concept has written the science is the pursuit and application of knowledge and understanding the natural and social world following a systematic methodology based on evidence. So there are two important points. It is the evidence, that is the some facts, and then there is a systematic methodology. दो वर्ड है ये, है ना, एक सिस्टमेटिक मेथोडोलॉजी भी है कि हम कैसे उसको एनालाइज करेंगे, एंड देन देयर आर certain observation. And if these things are universal, then whatever the knowledge that is generated or the body of knowledge is also kind of validated, and it is a verifiable thing. So it is universal and verifiable, so anybody can see it. So whatever in this course also, whatever we are going to discuss or maybe put forward as a proposals, so it should be verifiable by at least whatever the people that are sitting in the class, and it may be the same for the other world. So we are basically going to understand happiness as a science. So we are going to use this a systematic methodology to study, and based on the evidences and the observation that anybody can observe. So basically the idea is that if in the context of happiness, so the desire of happiness is anyway there. तो जो सुख की चाहना है उसको आपको क्रिएट नहीं करना, ये तो आप सबको समझ में आता। या अगर ठीक से देखें तो जो ये चाहना है ना, मतलब सुख ही एक ऐसा चीज है जो किसी चीज का मीन्स नहीं है। In all our actions, if you just see, then you will see that whatever you are doing for something, so it is, so happiness is not a means for anything.
ये आपको दिखेगा। मतलब ये जो सुख है ये साधन नहीं है, ये साध्य है। मतलब हमें सुखी क्यों होना है ऐसा हम नहीं बोल पाते या देख पाते, अपने में जांच के देखिए। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो डिजायर है ही, है ना। अभी हम उसको समझे हैं कि नहीं समझे, या हम उसको क्या मानते हैं, वो एक अलग इशू। तो अब अगर ये हमको समझ में आ जाए कि भाई डिजायर तो है ही, तो अब क्या करना है कि उसको एक तो ठीक से समझना है, और दूसरा उसको पूरा करने के लिए क्या करना है ना, उसका प्रोग्राम क्या है, इसको समझना। तो इसीलिए देखेंगे, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये जो विज्ञान लिखा है, जो साइंस का जो टिपिकल ट्रांसलेशन है वो तो हम विज्ञान से ही करते हैं। तो विज्ञान को लिखा है कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी सूत्रों से लक्ष्य के लिए दिशा निर्धारित करना, अर्थात प्रक्रिया प्रमाणित पद्धति का निश्चय सहित कार्य गति प्रदान करना, कराना, करने के लिए सामर्थ्य। ये है बेसिकली सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में उसका जो दिशा निर्धारण है, प्रक्रिया का निर्धारण है, या वो कैसे पूरा होगा, ये विज्ञान। तो अल्टीमेटली ये देखेंगे कि जो भी लक्ष्य को पूरा करने के अर्थ में जो हम कार्यक्रम को फैला रहे हैं, है ना, काल के और निर्णय और क्रिया के अर्थ में, है ना, पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित कर रहे हैं, ये बेसिकली विज्ञान का भाग ये है। जो लक्ष्य और ज्ञान वो उससे अलग है। लेकिन अभी जो करंट नोशन ऑफ साइंस है उसमें बेसिकली बॉडी ऑफ नॉलेज भी है। तो इन दोनों पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि भाई हैप्पीनेस क्या है और उसको पूरा करने के लिए क्या करना है। So these are the two basic objectives that we want to study as a science. ये है ना, इसमें साइंटिफिक मेथड भी है और उसको करने के लिए प्रोग्राम। तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। The other thing is why there is a need for this course of science of happiness, and we can also ask why we are writing as a happiness, because happiness is used in, basically there are several terms or several connotations where happiness or similar to happiness that is typically used. You will see that there is a well-being, which is a very general term, and in the positive psychology there are many things like the Parma model and other things are there, and there are people are using good life, flourish. So these are the several terms that are basically used synonymously, or sometimes we are using interchangeably, like happiness and well-being, or quality of life, subjective well-being, all those things. So, but why we are just writing as a happiness? So, like the well-being is basically we are looking at in the context of how we are living, या how should I live, है ना। टिपिकली वेलबींग का ये मतलब जाता है। बट यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, भाई हमारे जो जीने का जो रिजल्ट है वो हैप्पीनेस है। तो एक तरीके से देखेंगे तो हैप्पीनेस जो है वो एक स्थिति का नाम है, और जो गति में दिखेगा, व्यवहार में दिखेगा, वो वेलबींग। मतलब तो हाउ शुड लिव एंड व्हाट इज माय स्टेट, है ना, ये दोनों अलग अलग है। तो नॉर्मली क्या है कि जहां पर हम बोलते हैं कि भाई किसी भी चीज में मेरे लिए क्या है, या किसी भी एक्शन में मेरे लिए क्या है, जब हम ये पूछ रहे हैं तो टिपिकली ये वेलबींग है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जैसे जब हम वेलबींग की बात करते हैं तो पॉजिटिव इमोशंस, है ना, एंगेजमेंट, मीनिंग, बहुत सारी चीजों की बात हो रही है, एकम्प्लिशमेंट। तो अभी इसलिए इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम बेसिकली ये, इसलिए इसका नाम हैप्पीनेस रखें। But as I said, why we are trying to or introduce a course on science of happiness? What is the need? You know. So we'll see. The first thing is the fundamental aspiration of human being. तो हर मनुष्य सुखी होना चाहता ही है। अभी ये बात अलग है कि वो सुखी होने का क्या मानता है ना, मतलब सुख को क्या मानता है। But if you ask anybody, everybody has his own philosophy of happiness or its own meaning on happiness. So it means that everybody has some fundamental aspiration, और इसको बनाना नहीं है, we don't need to create it, है ना। मतलब किसी भी बच्चे को ये नहीं सिखाना है कि भाई तुमको सुखी होना है, या उसके लिए उसको मोटिवेट नहीं करना इन दैट सेंस। तो इसीलिए इसको लिखा कि
फंडामेंटल है ना, हर आदमी इसके लिए मोटिवेटेड ऑलरेडी है. So only thing is कि we need to make him or her to understand what is the meaning of happiness, what is that, what is the thing that is called happiness, and how to basically fulfill it. तो ये एक चीज है कि ये हर आदमी की आवश्यकता है इसलिए करना. But the point is that most of us get happiness wrong and invest time and energy in the things that are giving short term happiness. अभी क्या होता है कि हमको लगता है कि हमको ये करके सुखी होंगे, हम वो कर लेते हैं, वो हो जाता है, उसके बाद हम कुछ और चाहने लगते. इसका मतलब क्या है कि हम वो नहीं जा रहे हैं या हम उसी से बोर हो जा रहे हैं. तो इसका मतलब है कि हमको हैप्पीनेस पहचान में नहीं है. हमें किसी चीज के लिए कई बार एक पूरे साल मेहनत करते हैं, जब वो हमें मिल जाता है तो हम उसको एक सप्ताह में हमारे लिए नॉर्मल हो जाता है. तो इसलिए ये हमको समझना है कि ये हैप्पीनेस क्या चीज है. जो थर्ड पॉइंट लिखा है कि करंट स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ. तो जो थर्ड मोटिवेशन है इस कोर्स का कि देयर आर सर्वेज, जैसे टिपिकली यूएस और यूके के सर्वेज आ रहे हैं कि भाई जो ये स्टूडेंट्स का एज ग्रुप है दे आर मोर टेंस एज कंपेयर टू अदर. अपने यहाँ भी देखेंगे तो ये है ही. अभी इवन इन द इंस्टीट्यूट है ना, यू कैन आस्क द काउंसलर maybe 10 years when the institute is just started, how many percentage of students are coming to counselor and now what is the percentage. तो ये बढ़ रहा है. Even you will find these two studies that are basically as a news also published in Nature, which say that depression and anxiety is the norm for UK PhD students and mental health and of PhD researchers demand urgent attention. So considering all these things, that to basically improve the well-being or you can say the happiness state of the student, so this is anyway required. So we have just introduced this particular course. And it is not that we are just starting this course. So several national as well as international universities have started this course, and I have just picked a few of them. So, and I have just picked the names with the basically the course name where happiness term is there. Otherwise, you will find the similar thing with the name of positive psychology or well-being or some other good life, some other names also. Okay. So, like in the Harvard, its names happiness, or there is another course on edX, Maestro University, Managing Happiness. Science of Happiness, it is there in New York University or University of Bristol. There are University of California, Berkeley. So these are the some. Even you will find the Science of Happiness and Well-being, a course on in even NPTEL by IIT Kharagpur. So these are the some of things that you will find. So it means that the several other national international universities are also floating this course. So then I just tried to find out. So can we teach the course on happiness, or can happiness be taught? So we have just seen the requirement, but whether it is possible. And I have also searched for some of the experiences, how the people are teaching and how effective that is. Okay. So there is just a question that is a guide to happiness possible, and if possible, whether it is desirable. So the basic idea is what we mean, because let us say somebody will say that 40% of your happiness may be governed by your genes. There is saying, so you will find. So if it is governed by your genes or something else, then you cannot do anything about it, because you have not decided. So our idea is whether what we are saying, whether our happiness is governed by genes or not. So it means even what you will do by the rest of the things. The idea is that
how you define happiness. Sometimes people will say that you can learn happiness as you are learning any other skill. You know? So how you are perceiving happiness or how you are defining happiness, that is basically your uh, uh, then you can say whether it can be taught or it can be learned or not. Because most of the cases you will see there are saying that happiness can be learned, but it takes practice. A new study by University of Bristol reveals. So they are saying, so they have started this particular course and run for a year, and they after the course basically they have just surveyed what is the status of the maybe is there any boost in happiness of those students or not. So they might have done the surveys before the course and maybe the after course, and then they have done again some survey basically maybe after 2 years when the students passed out, and then they found that what if they haven't done anything, then their happiness level or is the same as when they are whatever is there before the course. Or even sometimes people will say कि भाई the happiness will stagnate some at point है ना मतलब वो. So considering all those things, so I have just put a question whether it can be taught or not. तो अगर हम उसको कुछ कर ही नहीं सकते है ना, या कुछ समय के बाद वो वहीं आ जाता है, या वो किसी जीन या किसी और फैक्टर से गवर्न होता है, then we cannot teach. But the good news is that we can teach and we'll see that happiness is a result of knowing. है ना? तो इस कोर्स में जो हमने डिफाइन किया है भाई जो सुख है वो ज्ञान या समाधान का जो रिजल्ट है या उसका प्रमाण है वो सुख. तो हम ज्ञान और समाधान के बारे में चर्चा कर सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं, अगला आदमी समझ सकता है. उसमें लर्निंग का भी पोर्शन कमी है, सम अंडरस्टैंडिंग का ज्यादा. तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये किया है, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा समझा है. अगर हम लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस या इटर्नल हैप्पीनेस की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज की ही हमें बात करनी है. अभी आगे हम और चर्चा करेंगे कि ये क्या चीज है ना, ये क्या समझ, बट इट कैन बी डन. So then, considering this, I have just googled it and for the some homework on what is the experiences of the teachers who are teaching these kind of courses, and you will find that there are several, like even in the Harvard, the course is very popular, or even in the Yale University also, some people are teaching. And then, but they have not, maybe the how many students are attending, all those information are there. But what is the experience of teachers, that I was just able to find out this one. So this title of this news is what we learned from teaching a course on science of happiness. So in this article, they have said that the problem is that there is no life transforming discovery because most of what works has already been talked about, like the social connection, mindfulness, gratitude letters, act of kindness, going for a walk. So all these limited social media use. So they are saying that if you just start this kind of a course, so what is the thing that people will ask? Tell your secret, what are the tips, or maybe what are your top 10 recommendations. So the idea is, and even if you just go to Amazon or Google, you just try for this self-help book, you will find several of them. And there are recommendations, you can do that, you can do that. Yeah, even so the basic idea is that everybody, if everyone knows and the books and other things are available, and it is also proven that these things work up, basically are working to a certain level. So then why we are not able to do that, or maybe why we are not practicing? जैसे अभी योगा डे गया. So basically if you just wake up in the morning and do some exercise, you will feel better.
लेकिन वो थोड़ी देर लगता है, फिर हम वैसी स्टेज पे आ जाते हैं. So the idea is कि whatever the strategies that we have learned, it is working. They have written that there are some 80 or so psychological interventions that have been shown to work to improve our well-being to a lesser or greater extent. But the idea is that this permanent or the eternal or whatever long-term happiness that you will say, they are not able to get it. So that is the basic point. So they have done this study. So uh, they are saying that this their study shows that well-being boosts are short-lived unless evidence informed habit learn on the course. तो उन्होंने ये बोला है कि जो उनके स्टूडेंट्स के लिए जो भी उन्होंने सर्वे किया, तो उसमें ये है कि जब 1-2 साल के बाद देख रहे हैं, तो वो जो बूस्ट था वो अब नहीं, अनलेस दे आर प्रैक्टिसिंग सम ऑफ दोज हैबिट्स, है ना, जो उन्होंने बांटे. एंड व्हाट आर दोज हैबिट्स, उसमें ये लिखा हुआ है, अल्टर योर ईगो, अवॉइड आइसोलेशन, रिजेक्ट नेगेटिव कंपैरिजंस एंड ऑल दोस. सो द बेसिक आइडिया है कि आपको कुछ हैबिट्स हैं और उनको आपको बना के रखना. बट द थिंग इज कि वेदर यू कैन लर्न दोज हैबिट्स, और उसको आप हमेशा कर सकते हैं, है ना. एक तो ये प्रॉब्लम. जैसे अभी ये लिखा है ना कि मतलब इन्होंने सिंपल एक एग्जांपल ही लिखा है कि इट इज लाइक गोइंग टू द जिम, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू डू वन क्लास एंड बी फिट फॉर व्हाट फॉरएवर. तो जैसे जिम में हम गए, एक दिन किया तो हमको नहीं लगेगा कि आप, तो इसका मतलब क्या है कि आपको लाइफ टाइम जो है वो करते रहना पड़ेगा. तो इसका मतलब ये है कि ये जो सुखी होने के लिए जो ये हैबिट्स हैं, ये अभी आपको बना के रखने के लिए, है ना. तो एक जो है आप शरीर के लिए कर रहे हैं, एक जो है सुखी होने के लिए कर रहे हैं. ये जो है अभी का प्रिस्क्रिप्शन. बट व्हाट वी आर सेइंग कि भाई अब आप अपने में जांच के देखें. सो देन देयर इज अ क्वेश्चन फॉर कि हम सुखी होकर करना चाहते हैं या कुछ करके सुखी होना चाहते हैं. क्या आइडिया है? सुखी होके करना चाहते हैं. ये डिफरेंस यहीं पर है कि सुख जो है, ये जो हमारा स्थिति है, ये किसी चीज के करने से बनेगी या ज्ञान के, समाधान के या समझ के आधार पर स्थिति बनी रहेगी. एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम उस जो भी काम है उसको करेंगे. अब अगर ये आइडिया है तो ही कंटिन्यूटी की बात है. जैसे आप अपने से पूछिए कि जब हम कुछ करेंगे तभी सुखी होंगे, हम ये चाहते हैं. तो इसको अपने को समझना. अच्छा, इसमें भी क्या है, बहुत सारी चीजों को देखेंगे. जैसे लिखा है देयर इज सम डिटेल एंड देयर इज अ पब्लिश्ड बुक नाउ, आई थिंक इन द 2-3 months ago. So they have made more details about these habits and these things. So the basic idea is, if you just look at all those, like first thing, alter your ego, performing the acts of kindness, है ना. तो अपने ईगो को कम करना है. तो ये तो आपको पता ही है. मतलब है कि यू हैव टू मेक कंसीडर द अदर्स, है ना, दूसरों को कंसीडर करो, है ना. अब पॉइंट ये है कि ये आप कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते. मतलब जो हमारा ईगो है, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि लेट गो, है ना. ये लेट गो आप हमेशा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते. अभी आपको अगर YouTube में जाएंगे तो यू विल फाइंड सेवरल वीडियोस, है ना, लेट गो कैसे करना है. बट द पॉइंट ये होता है कि आप कभी जिस चीज को आप बड़ा मानते हैं, तो बड़े के लिए आप छोटा छोड़ देते हैं, है ना. लेकिन अगर बड़ा नहीं मिला तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल है लेट गो करना किसी भी चीज को. तो ये बेसिक प्रॉब्लम है. या जैसे परफॉर्म द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस. अभी ये सब चीजें सुनने में काफी अच्छी है. यू कैन जस्ट गूगल इट इवन नाउ, है ना, एग्जाम्पल ऑफ एक्ट्स ऑफ काइंडनेस. तो ये काइंडनेस का एक्ट क्या है ना. जिन मित्रों से आपने कभी बात नहीं करी है उनको फोन कर दें. अभी सर्च करके खुद अभी देख, है ना, ग्रैंडफादर को फोन दिया या किसी को ये कर दिया. ये है एक्ट्स ऑफ काइंडनेस.
कि दयापूर्ण कार्य क्या है, ये अपने को समझना पड़ेगा कि दया चीज क्या है। मतलब दूसरे के विकास में सहायक होना, या दूसरे के मतलब जो भी कर रहा है कार्य व्यवहार में हस्तक्षेप किए बिना उसके विकास में सहायक होना, ये दयापूर्ण कार्य होना। अगला समझदार हो जाए, है ना, या सुखी हो जाए, ये होगा। या उसको आपने फूल दिया, या लेटर लिखा, या फोन कर लिया, फोन का कंटेंट क्या है, संबंध सुनिश्चित हो रहा है कि नहीं। तो अभी इसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वही है कि आप कर तो लेते हैं तो वो उससे कुछ लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं हो रहा है, आपको हर बार वैसे ही फोन देना पड़ेगा, या एक बार आप देते हैं वो अगली बार उससे बेटर देना पड़ता है, नहीं तो अगला अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते। तो ये, तो ऐसे ही ये जो सारे ही तरीके हैं ना, रिजेक्ट द नेगेटिव कंपैरिजन। अब ये कंपैरिजन तो होगा ही। So how you will do? So for doing all those things, connect with others. अब ये कैसे कनेक्ट होंगे? संबंध की स्वीकृति होगी तो कनेक्ट होंगे, या बिना स्वीकृति के कनेक्ट हो जाएंगे। हम सुबह यही बात कर रहे थे कि वो योग क्या है, जुड़ना कैसे। तो इसका मतलब ये है कि ये हैबिट्स से सुखी होंगे। ये जो हैबिट्स हैं ये सुखी होने का प्रमाण है या सुखी होने का सोर्स है, ये हमको समझना। जैसे दयापूर्ण कार्य करके या दयापूर्ण व्यवहार करके हमको सुखी होना है, या हम सुखी हो गए तो दयापूर्ण व्यवहार करेंगे ही, जब भी करेंगे। क्या सही ठीक है या क्या ठीक लगता है, ये जांच परख करना। तो ये जो आचरण है ये सुखी होने का प्रमाण है, ये सुखी होने का सोर्स नहीं, ये हमको स्पष्ट करना। तो ये तभी होगा जब हमको ये समझ में आएगा कि सुख क्या है। हम उस पर आगे बात करेंगे, है। तो ये अभी इस तरह के जो इंटरवेंशन है जिनकी अभी बात है ना। सो द आइडिया इज, यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है, द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग डिस्कवरीज, है ना। सो जो भी वर्क करता है वो बोला जा चुका है, इसलिए कोर्सेस का ये इफेक्टिवनेस। सो कंसिडरिंग दिस, है ना, वी हैव इंक्लूडेड दिस न्यू डिस्कवरी, इसी को लिखा है कि दिस कोर्स इज बेस्ड ऑन न्यू लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग डिस्कवरी और फिलॉसफी। तो ये जो मध्य दर्शन है ये एक नया दर्शन है जिसको, है ना, सन 2000 के आसपास पूरा लिखा गया। तो अगर भारतीय दर्शन की दृष्टि से भी देखें तो कम से कम, है ना, 1500 साल या 1000 साल के बाद एक कोई नए दर्शन की बात है। और इसको दर्शन क्यों कह रहे हैं या नया फिलॉसफी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो है यहाँ पर ये कोई विचार नहीं। तो इस दर्शन में देखेंगे तो तत्व मीमांसा की भी बात है ना, कि बेसिकली फंडामेंटल रियलिटी क्या है, इसको हम तत्व मीमांसा करते हैं। इसको आप मतलब मेटाफिजिक्स बोलेंगे। फिर सृष्टि मीमांसा है, मतलब ये जो तत्व आपको समझ में आ गया, मतलब मूल तत्व क्या है, और ये जो बाकी हमको बाहर सृष्टि दिख रहा है ना, झाड़ पत्थर और जमीन तारे, है ना, ये सारा कुछ। तो ये सृष्टि क्या है ये हमको समझ। जो तीसरा चीज होता है किसी भी उसके लिए, उसको हमने कहा ज्ञान मीमांसा, है ना, या प्रमाण मीमांसा। मतलब ये जो हम समझ रहे हैं वो समझने का जो प्रक्रिया है वो ठीक है कि नहीं, या जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या है ना। इसलिए मतलब जो वो कहीं भ्रम तो नहीं है। तो ये इसको कहा ज्ञान मीमांसा, मतलब या प्रमाण मीमांसा, कि ये जो आपने समझा उसका प्रमाण क्या है। और जो चौथा कंपोनेंट होता है दर्शन का, उसको कहा आचार मीमांसा, मतलब हमारा आचरण क्या है। अभी अगर ठीक से देखेंगे तो अगर ये भारत में एटलीस्ट ये है कि जो भारतीय दर्शन में ये चारों कंपोनेंट होंगे। अगर आप टिपिकली देखेंगे तो भारत में हम, है ना, 9 दर्शन की बात करते हैं, 6 वैदिक दर्शन और 3 जो जिनको हम नास्तिक या नॉन ऑर्थोडॉक्स दर्शन बोल रहे हैं, जैन, बुद्धिज्म और चैन। और बाकी जो 6 दर्शन हैं वो। तो अभी इन 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 जगहों में देखेंगे तो ये आपको चारों कंपोनेंट मिलेंगे।
कि हम हर जगह पर कोई एक मूल तत्व की बात होगी कि भाई ये है ना, वो एक है या अनेक है, वो अलग हो सकता है या सभी में थोड़ा बहुत अलग है। इनके आधार पर फिर बाकी जो चीजें दिख रही हैं उनका एक्सप्लेनेशन है, भाई गॉड है कि नहीं, धरती तारे क्या है, आदमी क्या है, जीव जानवर क्या है, ये जो कुछ भी दिख रहा है इनका है, प्रकृति क्या ये सृष्टि मीमांसा। फिर एक प्रमाण मीमांसा भी है ना। तो हर दर्शन में देखेंगे तो कहीं पर प्रत्यक्ष को प्रमाण माना है, कहीं प्रत्यक्ष के साथ अनुमान भी है या कुछ इस तरह के प्रमाण मीमांसा की भी बात है। और उसके आधार पर हमारा जीना कैसा होगा, है ना, कुछ उसकी बात है। कहीं पर किसी एक्सटेंट मतलब कम है, कहीं पे ज्यादा है, बट अल्टीमेटली जीने की भी बात है ना। कि हम करना क्या है, जैसे बुद्ध ने बताया कि भाई दुख है तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी बताया। तो इसका मतलब है कि हमको जीना कैसे ये है। तो ये जो दर्शन है, ये जो दर्शन के ये चारों चीजें हैं उन पे क्वालिफाई होता है। इनको हम जांच परख करके देख ही सकते हैं। एंड वी हैव जस्ट सेड कि भाई वी आर गोइंग टू यूज दिस साइंटिफिक अप्रोच। तो इसको हमको जांच परख करके वैलिडेट करना ही पड़ेगा वेदर दीज ऑब्जर्वेशंस और थिंग्स आर करेक्ट और नॉट। तो इसीलिए ये लिखा है, और इस दर्शन को जो लिखा गया है भाई एग्जिस्टेंस इज फंडामेंटली इन द फॉर्म ऑफ कोएग्जिस्टेंस। तो अस्तित्व जो है वो सहअस्तित्व के रूप में है, जो बेसिक तत्व के रूप में लिखा है, मतलब इकाई है और स्पेस है या व्यापक। और ये जो है चेतना विकास की बात कर, तो यहाँ पर विकास विकास क्रम से लेकर ये पूरे अस्तित्व तक तो एक्सप्लेन किया। और इसमें जो भी है वो मतलब बेसिक आइडिया है कि ये जो आंसर्स है ये यूनिवर्सल आंसर्स है। तो जो हमने अभी बात करी कि जो साइंटिफिक अप्रोच है उसमें यूनिवर्सलिटी और वेरीफाइबिलिटी, तो ये दोनों को ही सेटिस्फाई करता है कि भाई जो भी प्रपोजल्स हैं उनको आप वेरीफाई कर सकते हैं और यूनिवर्सल है। इसलिए ये आदमी के जीने और समझने सभी जगह पे ये किया। तो अभी जब हम अब हैप्पीनेस को देखने जाएंगे तो ये न्यू डिस्कवरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस दर्शन को भी जो लिखा गया है वो यही कह रहे हैं कि ये जो प्रेजेंट आदर्शवाद, मतलब ये जो बाकी स्पिरिचुअलिज्म के आधार पर और जो भौतिकवाद है जिसको हम अभी साइंस कह रहे हैं, ये दोनों का विकल्प है। मतलब ये इनमें जिन चीजों को हम समझने की प्रयास कर रहे हैं उनके आंसर्स यहाँ पर हैं जो वहां पे। तो इस आधार पर इसको इंक्लूड किया गया है और हम इसको आगे देखेंगे कि ये क्या कर। तो बेस्ड फॉर द हैप्पीनेस एंड अदर थिंग्स। तो ये बेसिकली इसको हम यूनिक फीचर भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ऐड किया गया है कि जो अभी टिपिकली कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, है ना, व्हाट एवर आई हैव जस्ट सर्च फॉर दिस टॉपिक, है ना, उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है। तो इसलिए जो उसके अभी हमने रिजल्ट्स बताए, तो इसलिए ऐसा लगता है कि इससे कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स की संभावना है ना। अदरवाइज तो आप ये बोल ही सकते हैं ना कि भाई वो जो कोर्स लोग पढ़ा रहे हैं वो तो ऑलरेडी है ही है ना। आप यूट्यूब, गूगल, ईडेस और ये सारे पोर्टल पे है, तो उनको आप पढ़ सकते हैं। तो ये पढ़ाने की जरूरत कितनी है, एक अलग बात हो सकती है, या उससे कोई डिफरेंट रिजल्ट आएगा है ना? ये इसके लिए ये नाउ वी कैन सी व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स, है ना। तो नाउ यू विल सी वी आर हियर नॉट गोइंग टू give you any है ना recommendation or tips or habits to learn, है ना। Here we are saying first objective is improve your understanding and knowledge of happiness। अभी happiness क्या है पहले मॉड्यूल में तो हम इसी की बात करने वाले, या जो बाकी जगह पे आप जो कह रहे हैं वो कितना है, या हम उसको साइंस मतलब बेसिकली ठीक से जांचने का काम करेंगे। दूसरा पॉइंट है टू मेक यू अंडरस्टैंड कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल एंड मीनिंग ऑफ लाइफ, है ना। तो बेसिकली वही है बट उसी को दूसरे भाषा में लिखा है। लेकिन फिर जीना भी है तो वो किस गोल के या किस लक्ष्य के अर्थ में जिएंगे ये स्पष्ट होगा। और ये किस आधार पर होगा, टू मेक यू अंडरस्टैंड ह्यूमन बींग्स एंड अदर एग्जिस्टेंशियल रियलिटीज। तो आदमी को भी समझना है, बाकी रियलिटीज को भी समझना है, ये इनके अर्थ में फिर जो भी ये गोल है ये कैसे पूरा होगा, और फिर हमारा जो जिसको कह रहे हैं ना बूस्ट ऑफ हैप्पीनेस और इंप्रूविंग द व्हाट एवर द करंट क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तो इसकी बात करें। हम अभी यहाँ पर ये नहीं लिख रहे हैं कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट,
तो दुखी नहीं होना एक बात है, क्योंकि स्ट्रेस को मैनेज करना है कि स्ट्रेस से फ्री होना है। फ्री हो। अभी तो आप ये कुछ टर्म बोलेंगे तो लोगों के लिए ज्यादा कैची वर्ड्स, बट वी आर नॉट यूजिंग दोस। सो बेस्ड ऑन दैट we have just decided the course content. The course content is basically it can include 6 modules. तो फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस क्या है। तो इसमें हम ये देखेंगे हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ नोइंग, है ना। ज्ञान या समाधान का जो रिजल्ट है वो सुख या समाधान ही सुख, ये समझने वाला है। तो अब अगर ज्ञान है तो फिर क्या चीज का ज्ञान होगा। पहला ज्ञान है जिसको कहा जीवन ज्ञान, है ना। नॉलेज ऑफ कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस क्या है, मैं क्या हूं, ये पहले समझ में। सुखी किसको होना, खुद को ही होना। ये तब ये खुद क्या है ये तो समझना पड़ेगा ना। तो ये जो सुखी होने वाला है पहले उसको समझना है, या समझने वाले को समझना है कि वो ठीक समझ भी रहा है कि नहीं। फिर ये इसके बाद उसके अलावा जो कुछ भी एग्जिस्टेंशियल रियलिटीज हैं उनको समझना है। तो मनुष्य को भी समझना है और मनुष्य के अलावा जो कुछ भी है उसको भी समझना है ना। तो इसीलिए लिखा है नॉलेज ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट। तो ह्यूमन बीइंग भी एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा जो कुछ भी है वो सबको समझना है। तो जीवन ज्ञान और अस्तित्व दर्शन ज्ञान, उसके बाद है मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो नीचे लिखा है नॉलेज ऑफ परफेक्ट ह्यूमन कंडक्ट। अभी आपको समझ में आ गया अपने बारे में और अस्तित्व के बारे में, तो उसमें कैसे जीना है ये समझना, ये समझने का ही रिजल्ट है, तो वो इंश्योर हो। और जो आखिरी के 2 मॉड्यूल हैं वो अभी जो करंट थ्योरीज हैं या करंट रिसर्च हो रहा है हैप्पीनेस में, हम उसके vis-a-vis एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और उनके मेजरमेंट की भी बात। So this is the typical course content that we are going to cover, and maybe some module will take more time and some will be covered in less enough lectures. Now the other part is, the question is what is the methodology of this particular course. So I will just talk about few things about this. So methodology in this course is exploration and thus universally adaptable. It involves systematic and rational study of human being vis-a-vis the rest of the system. So the basic idea is कि we are going to explore, तो यहाँ पे जो भी है कि हम उसको हर आदमी एक्सप्लोर कर सकते। तो अभी अपन ये नहीं कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो आप मान लो, मतलब ये नोइंग का मेथड तो नहीं हुआ। तो एटलीस्ट ये है कि वी आर जस्ट गोइंग टू से वी आर गोइंग पुटिंग सम फॉरवर्ड, put forward some proposals and you have to verify it, you have to self explore it. So this self exploration will be at your own right. तो इसकी हम बात कर रहे हैं, and it is free from any dogma or value prescription. So I am not going to say in this course that to be happy you have to do this, or you have to learn those habits, or you have to do any certain. तो हम ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं बताने वाले हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, या क्या प्रैक्टिस करोगे तो सुबह होगे, है ना, या सुबह 4 बजे उठोगे ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, या रात को 2 बजे सोओगे, या सुबह 2 बजे उठोगे, ऐसा अपन कुछ नहीं करेगा। ओनली थिंग इज यू कैन एक्सप्लोर एंड यू कैन डिसाइड योर सेल्फ, है ना। एक बार आप डिसाइड कर लेते हैं तब आप ऑथेंटिक होते हैं। फिर जब आपने डिसाइड किया है और आप अपने में जांच परख करके डिसाइड किए हैं, यू आर ऑथेंटिक अबाउट इट, फिर वो चेंज नहीं होगा। अदरवाइज क्या है, अभी हम एक प्रैक्टिस बता देंगे फिर अगला कोई और प्रैक्टिस बताया। से बच्चे क्या है कि जब हॉस्टल में यहाँ पे नहीं आए थे तब सुबह जल्दी उठते थे कि नहीं, घर में माँ बाप जगा ही देते थे कि भाई बहुत टाइम है। यहाँ क्या है, वो 2 बजे भी उठ रहा है या 12 बजे भी उठ रहा है, बल्कि जो सुबह उठ रहा है उसको तो बेवकूफ की कैटेगरी में रखा जा सकता है ना। वो कूल नहीं है बिल्कुल भी। रात को सोना कितने बजे है, 2 बजे। कैंटीन कितने बजे तक खुलती है, 1:30-2 बजे तक कैंटीन भी खोलना पड़ेगा ना। तो ये क्या है, ये हैबिट्स हो। तो अभी अपन ऐसा कुछ नहीं कह रहे, वी आर गोइंग टू से कि भाई यू कैन एक्सप्लोर दिस, है ना। तो क्या समझ है भाई, स्वास्थ्य के लिए क्या करना है, सुखी होने के लिए क्या करना है, यू कैन डिसाइड। तो द बेसिक आइडिया इज कि आई एम नॉट गोइंग टू प्रेस्क्राइब एनीथिंग। सो
we will be just facilitating you to verify these proposals at your own right. तो अब ये जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, तो ये जो है वो डायलॉग के फॉर्म में है ना। ये जो भी कहा जा रहा है वो संवाद है, एक डायलॉग। तो संवाद या डायलॉग और डिबेट के बीच में भी अंतर हमको समझना पड़ेगा। तो अगर संवाद है तो ये किसी अर्थ में होगा, मतलब पूर्णता के अर्थ में हम संवाद करते हैं, मतलब कोई एक लक्ष्य के अर्थ में करेंगे ना। अभी जो डिबेट होता है वो क्या है, डायलॉग और डिबेट में यही अंतर है ना। डायलॉग क्या है कि भाई आपका एक पर्सपेक्टिव है, मेरा एक अदर पर्सपेक्टिव है, हम दोनों डिस्कस करते हैं, फिर एक जगह पर खड़े हो गए, क्योंकि सही तो एक ही जगह हो। तो आफ्टर द डिस्कशन वी हैव द सेम पर्सपेक्टिव, यही तो मतलब, क्योंकि लक्ष्य तो किसी लक्ष्य के अर्थ में ही करेंगे ना, कोई एक चीज को समझना है। डिबेट क्या है कि आपका एक पर्सपेक्टिव है, मेरा एक पर्सपेक्टिव है जो कि अपोजिट है उसके, और हम दोनों थोड़ी देर तक झगड़ा करते हैं, और उसके बाद आप अपने पर्सपेक्टिव से चले गए और हम अपने पर्सपेक्टिव से चले गए। ये डिबेट। जो सुनने वाले हैं कई बार उनको जो भी समझ में आ जाए। सो यहाँ पर जो है ये क्लासरूम है, तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ डायलॉग। ये इसको क्यों बता रहे हैं, इसका भी आगे निष्कर्ष आएगा कि ये इसकी जरूरत क्यों है ना। तो ये एक डायलॉग है, आप उसमें मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस कैसे एक्सप्लोर करना है ये पूछ सकते हैं। उसके लिए कुछ आप अपने ऑब्जर्वेशंस रख सकते हैं कि मेरा ये जो सोचना है वो इस आधार पर है। फिर हम भी कुछ ऑब्जर्वेशंस रख सकते हैं कि भाई आप इस ऑब्जर्वेशन को देखिए एंड मे बी यू विल बी एबल टू डू दैट। सो लाइक दिस वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर whatever the proposal that we are going to say, and then we can conclude, at least for now, what is the current status and what is we can accept. So this is some more clarification about this methodology. So I have just written that you are free to disagree in the class or sometimes you must disagree. है ना? अब ये मस्ट डिसएग्री, डिसएग्री का मतलब क्या है, जब आप डिसएग्री करते हैं तो उससे मुझे पहला चीज तो ये पता चलती है कि व्हाट एवर प्रपोजल्स दैट आई एम पुटिंग फॉरवर्ड इट गॉट रजिस्टर्ड और यू हैव नोटिस दैट। अदरवाइज क्या है भाई, आपने कुछ नहीं पूछा तो अब कई बार है कि वो नोटिस भी नहीं हुआ और निकल गई। दूसरा है कि नाउ यू आर कंसर्न्ड अबाउट इट एंड यू वांट टू एक्सप्लोर। कई बार है कि आपने नोटिस भी कर लिया, लेकिन अगर आप कुछ नहीं होता, कई बार होता है चलो ये तो बोलते हैं बोलते रहेंगे, है ना। और मे बी टीचर्स हैव ड्यूटी टू से समथिंग, है ना, हम सब चीज थोड़ी मान लेंगे। तो या ऐसा थोड़ी होता है दुनिया में, आप ये भी बोल सकते हैं। बट अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है यू आर वॉट एवर आई एम सेइंग इट इज गॉट रजिस्टर्ड एंड नोटिस एंड यू आर कंसर्न्ड अबाउट इट एंड यू वांट टू सॉल्व इट। कि जब तक ये नहीं शो करते हैं तब तक ये पता नहीं चलता है कि आप तक पहुंची बात की नहीं पहुंची। तो इसलिए कुछ सेंस में ये डिसएग्री होना ये जरूरी भी होता है। फिर ये जो डिसएग्रीमेंट है तो इसी अच्छा दूसरा है, इसीलिए अपन क्या भी रहे डोंट एज्यूम राइट अवे टू बी ट्रू व्हाटएवर स्टेटमेंट मेड इन द क्लास, गिव टाइम फॉर द सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वो काम है, क्योंकि इस कोर्स में हम कोई हैबिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, या हम कोई ऐसा नहीं कह रहे हैं कि है ना कि ये कुछ दिन तक करोगे और फिर ये कुछ हो जाएगा। व्हाट वी आर सेइंग इज दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग। तो अंडरस्टैंड करने के लिए एक्सप्लोरेशन तो करना पड़ेगा। जैसे साइंस में भी हम किसी चीज को बता देते हैं, बट आप उसको एक्सपेरिमेंट करा कर तो दिखाते हैं। इवन टुडे आल्सो वी assume that this first law of thermodynamics is true, but still we are demonstrating to our students। ये तो है ना, तो वो एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए लिखा है पहले आप असहमत होंगे, डिसएग्रीमेंट, एंड देन मे बी आफ्टर सर्टेन डिस्कशन आपकी सहमति बनती है, या एटलीस्ट यू आर एबल टू सी कि चलो अभी देखते हैं, विल ट्राई टू। ये जो एक्सप्लोर करके जब आप अपने में देख पाते हैं तब उसका एक्सेप्टेंस बनता है, या आपकी कुछ मानना जैसा आता है ना। तो ये जो स्वीकृति बनेगी या मानना होगा, उसके आधार पर फिर एक समय के बाद वो जानना होगा। तो पहले, क्योंकि जानने में क्या है
कई डायमेंशन से चीजें जुड़ती। तो कई बार होता है कि वो अचानक से एक ही दिन में आप सारा डायमेंशन से देख लेते हैं, ऐसा नहीं है। और ये जो जानने के आधार पर फिर तब वो चीजें हम आचरण में ला पाते, क्योंकि कोई भी चीज को जब हम जीने जाते हैं, आचरण में ले आने जाते हैं, तो वो एक बड़े डायमेंशन से जुड़। तो अभी भी देखेंगे तो जो हमारा जो आचरण है वो या तो मानने के आधार पर हो या जानने के आधार। अभी ठीक से देखिए, तो ज्यादातर चीजें जो लोग कहते रहते हैं ना, वो सहमति असहमति के लेवल पर है या उससे अभी और नीचे है, कि एक मान रखा है। अभी हम कहते हैं कि वो माना हुआ है, बट ठीक से देखेंगे तो जो आचरण में है वही माना हुआ है। से क्या है, अभी हम भारत देश में तो कम से कम सुनते हैं कि आत्मा अमर है और मैं आत्मा हूं, इतना तो सबको बताया। उसका जो आचरण है वो आत्मा के आधार पर है या शरीर के आधार पर? शरीर के आधार पर। इसका मतलब क्या है, मानता क्या है? शरीर को ही मान। तो इसका मतलब जो आचरण में है वही तो मान रहे हैं ना। तो इसीलिए मध्य दर्शन में कहा कि माने हुए को जान लो, जाने हुए को मानो। कभी इस पर और आगे बात करेंगे। तो ये पूरा स्कोप है इस पूरे कोर्स में। सो लुक विद इन बेसिस, जो द बेसिस ऑफ करेंट एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट है ना, अभी जो आपका एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट है उसको हमें एक्सप्लोर करना है, उसके बेसिस को देखें। तो जो उसमें basic idea is we will facilitate in exploring those realities, but the thing is that now there are assignments and है ना, मे बी एग्जाम्स इन द कोर्स, तो उसमें क्या लिखेंगे, है ना। सो द पॉइंट हियर इज कि भाई जो हम बहुत बात कर रहे थे कि भाई आप क्लास में जो भी डिसाइड होगा आफ्टर द डिस्कशन, है ना, जो सहमति बनेगी एटलीस्ट वहां पे रखना। आप अपनी मान्यताओं को नहीं लिख सकते, क्योंकि अदरवाइज तो क्या है, फिर देन एवरीबॉडी इज राइट, मेरी तो यही मान्यता। फिर क्या है, फिर तो एग्जाम लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो सबका अपना अपना सही है ना। एक मान्यता भी है कि सबका सत्य अपना अपना होता है, फिर तो समस्या हो गई ना। सही तो फिर एक ही होगा। सो दिस इज द नीड फॉर द सेल्फ एक्सप्लोरेशन। देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ प्री कंडीशनिंग, बट है ना, आदमी जो है सही में एक होता है, गलती में अनेक होता है। सो इफ देयर आर मल्टीपल थिंग्स, है ना, तो ये कुछ तो इशू है ना। या तो आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से सेम ही चीज को देख रहे हैं, है ना, या अलग अलग नाम दियो, देयर माइट बी सम रीजंस फॉर दिस कंफ्लिक्ट, लेकिन उसको रिजॉल्व करके रियलिटी तो एक ही पे आना पड़ेगा। तो उसी को आपको एग्जाम में या असाइनमेंट में जब लिखना है फॉर द इवैल्यूएशन, तो एटलीस्ट so before freezing those realities, you can have disagreement or your observations or whatever the thing, so that we can explore and decide priorly. ये चीज है। लेकिन now the other point is the how we are going to evaluate, है ना। तो ये कोर्स इवैल्यूएशन होगा कैसे? So I have just seen there are universities giving credit based on engagement in the course, so there is no exams. जैसे अभी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल जिनका हमने एक्सपीरियंस शेयर किया था, सो व्हाट दे आर सेइंग कि भाई वो एग्जाम नहीं लेते, क्योंकि एग्जाम क्या है कि वो स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण, और कोर्स जो है वो हैप्पीनेस पे, है ना। तो अभी क्या है कि फिर यहाँ किया जाए कि नहीं किया जाए, ये प्रश्न है। सो बेसिक आइडिया कि ये जो हम इवैल्यूएशन लीड्स टू एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ये क्यों होता है, पहले तो ये समझना है। और क्या आप इवैल्यूएशन किसी का नहीं करते हैं, या आप इवैल्यूएशन से बच सकते हैं किसी के कभी भी? लाइक इवैल्यूएशन तो हर आदमी कर रहा है और हर समय कर रहा है। पिताजी आपके जो है बिना इवैल्यूएशन के तो कुछ पैसा नहीं भेज रहे, तो इवैल्यूएशन तो हर जगह हो रहा है, लेकिन वहां आपको थोड़ा उतनी एंजाइटी नहीं हो रही। लेकिन अगर एक बार जो है पैसा नहीं भेजे तो कुछ होगा फिर आगे, है नहीं। तो द पॉइंट हियर इज कि ये जो हमको जो प्रॉब्लम है, पहले तो उसके रीजन को समझना है कि ये जो एंजाइटी और स्ट्रेस का रीजन क्या है।
बट हम इवेल्युएशन को अवॉइड नहीं कर सकते। हमको नहीं पता होता है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, है ना, या उसका जो इम्प्लीकेशन है वो बहुत है। जैसे अभी एग्जाम से बच्चों को भय क्यों लग रहा है? नॉलेज नहीं। नॉलेज वाले थोड़ी है भाई, ग्रेड नहीं आएगा, सीजीपीए कम होगा, पैकेज कम का लगेगा, फाइनली दुखी होंगे, है ना, या कुछ और होगा, उसके बहुत सारे। तो बेस्ड ऑन इम्प्लीकेशन है ना, उनको समझना थोड़ी है। आधा एंजाइटी तो यही है। तो अभी ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, तो इन दिस कोर्स, अभी ये कह रहे हैं कि एक तो जो यहाँ पर कोर्स कंटेंट है और इंस्टीट्यूट रूल। तो अभी एक तो है कि भाई इन दिस इंस्टीट्यूट इफ यू वांट टू गेट अ डिग्री, है ना, तो देयर शुड बी इवैल्यूएशन एंड यू विल गेट अ क्रेडिट फॉर दिस। तो एक तो ये है, तो इस कोर्स के लिए बदलना है कि नहीं बदलना, पहले तो ये सोचा। दूसरा ये है कि ये जो इसका कंटेंट है, भाई आप फर्स्ट क्लास थर्मोडायनिक्स पे अगर एग्जाम दे सकते हैं तो फिर इसमें भी एग्जाम दे सकते, वो उतना ही ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यही जो हमने पहले बात करी कि वी आर गोइंग टू टेक ए साइंटिफिक अप्रोच टू हैप्पीनेस। तो एक जगह पर आप साइंटिफिक अप्रोच से आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, उसका आप प्रॉपर राइटिंग में एग्जाम दे सकते हैं, तो इसका भी दे ही सकते हैं। एक तो ये। दूसरा ये है, अभी हम असेसमेंट क्या करेंगे, ये जो हमारा असेसमेंट है उसका पर्पज क्या है। एक तो जो आप समझे हैं वो सही समझे हैं कि नहीं, उसका एक फीडबैक देना। एक तो कितना समझ में आया ये बात। दूसरा कि उस फीडबैक के आधार पर आप आगे ध्यान दे सकें। यही है। जैसे अभी भी क्या होता है कि फर्स्ट थर्मोडायनिक्स से भी कोर्स में अगर फेल हो गए तो उसका क्या मतलब है कि भाई तुमको रिपीट करना पड़ेगा। यही तो हुआ ना। तो ये इस पर्पस तो यही है कि हम उस तरीके से उतने ही साइंटिफिक वे से इसको इवेलुएट भी कर सकते हैं। एक तो ये कोर्स का थ्रेड टू थ्रेड। नाउ द थिंग इज इन दिस कोर्स, क्योंकि अब वो लोग भाई सुखी हुए कि नहीं, अब ये कैसे इवेलुएट होगा, मतलब मेजर समस्या तो ये है ना। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो सुख है, अभी ये तीन चीजें लिखा है कि अगर कोई भी चीज को समझना है तो उसके तीन लेवल हैं। एक ये है कि भाई जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको आप रिपीट कर सकते, है ना, वही बोल सकते। जो दूसरा लेवल होता है कि हम उसको अब समझ गए, मतलब समझ गए का मतलब है कि अगर हमसे कोई उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको तर्कपूर्वक बता सकते, उसको एक्सप्लेन कर सकते या रेशनली डिस्कस कर सकते, है ना, या उसको डिफेंड कर सकते, है ना? तीसरा जो स्टेज है कि अब वो जो भी कहा जा रहा है वो हमारे लिए फैक्ट है ना, मतलब वो हमारे लिए अब रियलिटी बन गया है, ट्रूथ हो गया है ना, या हमने उसको रियलाइज कर लिया, ऑथेंटिक हो गया है उसके बाद। अब हमको कोई भी डाउट उस पर नहीं होता। ये तीसरा लेवल। और उसकी, तो ये जो तीसरा लेवल है ऐसा हो जाता है तो उसी को जानना गया या रियलाइजेशन गया, और तभी वो उस आधार पर फिर वो आचरण में भी उस तरह की पूर्णताएं दिखेंगी और आगे चीजें लगेंगी, है ना। तो द सेम चीज रिटन हियर, you got the content and you are able to see it and repeat it, you are able to understand it and able to answer any queries on that, it becomes fact for you and you are living on that basis। तो ये तीन कैटेगरी। तो अभी हम ऐसा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि इस, है ना, कोर्स को करते ही आप जो है ना, सुखी हो जाएंगे, आनंद को प्राप्त हो जाएंगे, है ना, या आनंद की निरंतरता हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है एक्सपेक्टेशन, है ना। So the thing is, whatever the evaluation that is going to be there for the first two only, है ना। अभी हम उसको नहीं जांच रहे कि आपके जीने में कितना है, क्योंकि जीने में जांचने के लिए भी आपके साथ जीना तो पड़ेगा ना। अभी हमारा जो टिपिकल इंटरेक्शन होता है कि मे बी वी आर मीटिंग 3 days a week in the classroom, maybe for 3 hours, and maybe if you have some queries or anything that may be after the class, इतना ही। इतने में आपके बारे में असेसमेंट करना मुश्किल है। जिनके साथ आप जीते हैं, है ना, वो ज्यादा बेटर असेस कर सके। तो फिर अगर थर्ड के लेवल के असेसमेंट को देखेंगे तो इस असेसमेंट के लिए फिर
दूसरे तरह के चीजों को देखना पड़ेगा और उसमें यू हैव टू आल्सो बी इन्वॉल्व। तो पहले तो आप ही बोलोगे भाई हमको समझ में आ गया और हमें भी, फिर बाकी लोग उसके प्रमाण को बताएंगे। अभी जो हमारा आइडिया ये है, वी आर गोइंग टू डू द इवेल्युएशन बेस्ड ऑन द फर्स्ट टू। तो भाई आपको जो कंटेंट हम बोल रहे हैं, जो भी हमने डिस्कस किया, वेदर यू आर एबल टू गेट इट और नॉट, आपको ध्यान में आ गया है कि नहीं, और उसको आप अपने जीने के लिए या कुछ अपने विचार के लिए या उसके जो भी है, आप उसके आधार पर कुछ सोच पा रहे हैं, किसी किसी डायरेक्शन में या किसी किसी चीज पे आप निर्णय ले पाते है ना, या कुछ चीजों में आपके जीने में भी आ जाएगा, है ना। तो कंटिन्यूटी हो गई कि नहीं, आपके लिए फैक्ट हुआ कि नहीं, ये एक अलग बात है, बट एक बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग तो हो गया। तो हम फर्स्ट टू लेवल्स को टिपिकली जांचना चाहते हैं। तो इन द इवैल्यूएशन इज where surprise speaks, so that will be taken more regularly. It means that whatever is taught in the last class, है ना, तो इफ यू, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो पिछले क्लास में डिस्कस हुआ उसको हम अगले क्लास में और आगे करते हैं, so it is a kind of a sequential exploration। तो वो जो पिछले क्लास में डिस्कस हुआ, वेदर यू कैन रिमेम्बर इट और नॉट, वो आपके ध्यान में है कि नहीं, एटलीस्ट, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो पहला चीज तो ये है। बट द जो भी मिड टर्म इंटर्म एग्जाम्स और असाइनमेंट, इस तरह की चीजें इंटर पर्टिकुलरली विल बी फोकस्ड ऑन द सेकंड पॉइंट। भाई आप उसको समझकर उसके आधार पर कोई चीज को आर्ग्यू कर सकते हैं। देयर मे बी अ केस स्टडी एंड देन यू हैव टू राइट कि, है ना, हाउ यू थिंक अबाउट बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग। Assignment can also be the similar lines. So this is the typical evaluation methodology in this particular course that we have decided. And this is the typical grading policy. So for the attendance, maybe, you know, how you are engaged about this course and the quizzes, and then there are some take home assignments, you know, to maybe explore more. And then typical exams are there. And the grading policy will be as per the institute norm, so we will put grading into there. Okay. So this is the typical evaluation of this particular course. And then we will start the basic discussion on the course in the